Yes, students, I gave you one homework yesterday. So all of you must have done that. If not done, you can go through the answers. First was, what was the first name? Sodium oxide. Sodium oxide. Sodium oxide is formed by two ions, sodium and oxide ion. Sodium ion Na positive, oxide ion O2 negative. The formula valency इसकी 1 है, इसकी 2 है. By crisscross method, Na2O. The formula of sodium oxide is Na2O. Second one, Aluminium chloride. Aluminium chloride Al and chloride is Cl. Aluminium ion has charge 3 positive, chloride ion has charge 1 negative. So if we you can say need to join them to form formula, हमने ये जो charge है उसका number यहाँ लिखना है Al3 chlorine 1 and when we crisscross them it's formed AlCl3. Okay, so this is the compound formula is AlCl3. So next example, sodium sulfide. sodium sulfide is sulfide ion can be written as S2 negative. ठीक है, तो formula of sodium sulfide will be same as sodium oxide Na2S. Next is Magnesium hydroxide. magnesium is Mg, hydroxide is OH. So Mg formula 2 positive, OH 1 negative. Valencies Mg पे 2 है, जितने चार्ज है बेटा उसका चार्ज साइन हटा दो, बाकी वैलेंसी है. OH 1 नेगेटिव, तो here you will write 1. और क्रिस क्रॉस जब करना है आपको ये नंबर Mg के सबस्क्रिप्ट लगाना है, ये नंबर OH को सबस्क्रिप्ट लगाना है. तो Mg 1 हम नहीं लिखते हैं, इसलिए ये जरूरत नहीं है. OH जो है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है. Just put bracket outside this and then write this number. If it is 1 here, then no need to put bracket. The formula will be MgOH twice. Next. Next part 2. Question number 2. You need to mention the name of those formula given. Formula first था आपको Al2SO4 thrice. For Al2SO4 thrice, the name of the compound will be aluminium sulfate. Next formula was CaCl2. So this is calcium chloride. Next one K2SO4. K is potassium, SO4 sulfate. So name is potassium sulfate. Next one KNO3. KNO3. पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, नाइट्रेट में बेटा इसको नेम जब आपने लिखना है ना 2 पार्ट्स में लिखने. फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम, मतलब पोटेशियम कैल्शियम में जो फर्स्ट नेम कैटायन का होता है हमेशा और सेकंड नेम एनायन का होता है. एंड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ओनली, उसके बाद सेकंड नेम, जैसे आपने इसका कैल्शियम लिख रहे हो तो ये एक सी कैपिटल कर दिया, दूसरा सी स्मॉल ही आएगा क्लोराइड का. मतलब एक नेम में ये नहीं है कि इसको भी आप सी कैपिटल लिखो. ओनली द फर्स्ट इनिशियल इज कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं. तो दिस इज द वे हाउ टू राइट नेम. कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट. नेक्स्ट वन CaCO3 is कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट बहुत कॉमन एनायंस हैं, पॉलीएटॉमिक एनायंस. यू नीड टू लर्न देयर फॉर्मूला प्रॉपर्ली. बहुत यूज होंगे आगे 10th में भी इक्वेशंस में. So after this, question number 3 था बेटा, what is meant by a chemical formula? That we have already done yesterday. Definition मैंने आपको करवा दी थी. Next 4th question you need to note down here in book. Otherwise बाद में आप उसको notebook पे कर सकते हो. वहाँ पर question है बेटा, calculate the number of atoms present in the molecule. Molecule first one is I think H2S ना. तो H2S में आपको क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकालो. तो यहाँ आपको बेटा नंबर ऑफ एटम्स के लिए एक चीज याद रखो, सबस्क्रिप्ट पे जो नंबर लिखे हैं किसी भी सिंबल के साथ वो उसका नंबर होता है. तो हाइड्रोजन 2 हो गए और सल्फर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1. तो 2 + 1 3 एटम्स. So if it is asked to find number of atoms, you can calculate like this. Anyone who can tell me what अभी इसमें हमने आयन से बात कर दी, एसेंशियली आयन की है. नेक्स्ट वाला कंपाउंड क्या है बेटा? नेक्स्ट फॉस्फेट आयन. Phosphate ion, how many atoms are there?
Priyanka, can you tell how many atoms are there in this? बेटा you just look at the types of atom. ये phosphorus है, ये oxygen है. P के साथ कोई subscript नहीं लगी हुई है, तो just 1 phosphorus हुआ plus 4 oxygen. तो total 1 plus 4 5 atoms. अगर आपको नेम पूछे तो नेम्स भी बता सकते हो, कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है, कितने हैं, वो आपको सबस्क्रिप्ट देख के बताने. चार्ज से आपको कोई रिलेशन नहीं है नंबर का. डोंट लुक एट द चार्जेस, इसको भी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अब एक दो एग्जांपल आप एक्स्ट्रा नोट कर लो. फॉर एग्जांपल इफ इट इज आस्क्ड हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस कंपाउंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 1 mg हो गया प्लस 3. बेटा अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है. पॉलीएटॉमिक आयन में इटसेल्फ जैसे अपने फॉस्फेट आयन के 4-5 एटम्स बनाए ना, सिमिलरली यहाँ पे भी OH के अलग अलग एटम्स बनाओगे. ऑक्सीजन OH के अंदर ही एक ऑक्सीजन है, बट ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ब्रैकेट के अंदर एक है, बाहर 2 लगाया हुआ, 2H. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5. 5 एटम्स आर देयर. And this side I am writing ions, ताकि आपको डाउट ना हो कि आयन पूछा जाए तो कैसे निकालना है. If it is asked to mention number of ions or name of ions present in this any compound, तो name of ion हो गया एक मैग्नीशियम आयन, दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन. नेम तो आप इजीली देख के निकाल दोगे, नंबर जो निकालना है वही आप सबस्क्रिप्ट चेक करोगे. तो आयन हो गया 1 mg पॉजिटिव. साथ में जब भी आयन लिखना होता है ना बेटा, चार्ज जरूर लगाते हैं. 1 Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपने चार्ज नहीं लिखा तो वो एटम को रिप्रेजेंट करेगा, आयन को नहीं. एंड OH आयन कितने हैं यहाँ पे? हाउ मेनी OH आयंस आर देयर? 2, बिकॉज़ ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लिखा है, तो 2 OH नेगेटिव है. क्लियर? तो अगर आपको क्वेश्चन को समझना है पहले, इफ इट इज आस्क्ड टू मेंशन नंबर ऑफ आयंस, तब आपको पूरा आयन अलग से फाइंड करना है. If it is asked to mention atom, तो उस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर भी जो एटम्स है उनका भी नंबर अलग अलग होना चाहिए. One more example you can take. NH4 fold twice SO4. This is, who will tell the name of the compound? Ammonium sulfate. Okay, ammonium sulfate is the name. And now if we need to find ions first, how many ions are there? 2 ammonium ions, और दूसरा भी तो है ना, सल्फेट को कितना है? 1 सल्फेट है. तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए. और उसके टाइप्स अगर पूछे जा रहे हैं, 2 केटायंस अमोनियम आयन, 1 एनायन सल्फेट आयन. केटायन एनायन की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप टेबल याद करोगे, नहीं तो कुछ नहीं क्लियर होगा. फर्स्ट यू नीड टू लर्न दैट टेबल. तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 है यहाँ पे, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने? आप देखो, ये निकालो आप. नाइट्रोजन यहाँ फॉर्मूला में 1 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 हो गया आपके पास नाइट्रोजन एटम. प्लस हाइड्रोजन H के साथ 4 लगा, 4, बाहर 2 भी है, तो 4 2 जा 8 आपके पास H आ गया. उसके बाद चलो अब बाहर एक S आ गया, 1 सल्फर एटम प्लस 4 O, 4 आ गया हमारे पास ऑक्सीजन. तो टोटल एटम्स 2 + 8 10, 10 and 5 15 atoms. So in this way you need to find the number of atoms or ions whatever is asked in exams. And both of the way it can be asked. केटायन कौन सा है, आयन कौन सा है, कितने टाइप के आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, कितने एटम्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. अब एक ही चीज आपको बहुत कुछ बता रही है. If it is asked to mention the names of elements, Khushi, can you tell name of elements present in this compound? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक आप फिर भी मिस कर रहे हो ना, ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है. पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी देयर. अब जैसे इसमें अगर आपसे एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, या नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर. वही तो एटम्स हमने कैलकुलेट किए. जब हम एटम्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं मतलब हम एलिमेंट्स ही देख रहे हैं.
कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं और वो कितने नंबर में। और जब हम आयंस की कैलकुलेशन करते हैं वहां हम इंडिविजुअल आयन को ही देखते हैं, उसके अंदर और कौन कौन से एटम्स हैं वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट। क्लियर? तो 3 आयंस आर देयर बट 15 एटम्स आर देयर बिकॉज बोथ ऑफ दी स्पीशीज आर पॉलीएटॉमिक। ये भी पॉलीएटॉमिक है, ये भी पॉलीएटॉमिक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। क्लियर हो गया अभी? नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, तो उसमें तो लिखे ही अलग अलग हुए। वो तो एक ही एलिमेंट तो एक ही है बट डबल दबा लिखना पड़ेगा। नहीं, दो इकट्ठे दो लिखे। उसमें हमने कोई स्पीशीज के नाम तो नहीं लिखवाते ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो ऑक्सीजन 2 ही होंगे, हाइड्रोजन के उसमें H3 है और C1 है, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है नहीं लिखा है व्हाटएवर, वो उसमें तो लिख ही रहे हैं सारे क्योंकि वो ओपन करके लिखा होता है। अंत बेटा मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट यू राइट इट्स डेफिनेशन। अब जैसे हमने एटम्स के इंडिविजुअल मास तो आपने लर्न किए टेबल में, बट मॉलिक्यूल तो इतनी वैरायटी में क्योंकि कुछ भी आप कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हो। तो मॉलिक्यूलर masses cannot be crammed but they can easily be calculated by using those atomic masses. Firstly you need to mention definition. Write down the relative mass of one molecule of a substance चाहे एलिमेंट है या कंपाउंड है, मॉलिक्यूल कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू या विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ वन एटम with respect to the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. सेम एटॉमिक मास वाली डेफिनेशन है। एटॉमिक मास रिलेटिव मास होता है एक एटम का, इसी के रेस्पेक्ट में कार्बन 12 को एक तरफ हम रखते हैं। हमारे पास सपोज एक वेइंग बैलेंस है, उसमें एक तरफ हमने कार्बन 12 वाले आइसोटोप का एक एटम रखा और उस एटम के मास को 12 से डिवाइड कर लिया, एक रेफरेंस यूनिट बना ली 1 AMU। उसके कंपैरेटिवली कोई भी मॉलिक्यूल कितना हैवी है, ऑब्वियसली उससे हैवी होंगे मॉलिक्यूल्स जनरली, अगर बड़े मॉलिक्यूल्स है तो उससे कितना हैवियर होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मास। तो रिलेटिव ही निकाले गए हैं मॉलिक्यूलर मासेस भी। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चीज क्या है, यूनिट भी वही यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास के लिए, यू। ठीक है, यूनिट विल बी यूज्ड एज यू, यूनिफाइड मास। The unit of atomic mass and molecular mass is simple, small case में u डालना। Now examples, you just note down all these examples क्योंकि तभी आपको फिर याद रहेगा कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है। Calculation of molecular mass. Just you need to know the number of atoms, type of atoms present in that particular molecule. You just add all those masses, you will get the molecular mass. Simplest example I am taking of water, H2O. If you need to calculate mass of one molecule of water, which is called as molecular mass of water, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला हर एक के लिए पहले लिखना पड़ता है। टाइप ऑफ एटम्स हमारे पास दो टाइप के हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब उनके नंबर ऑफ एटम्स देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे वाटर में, 2, तो यहाँ पहले 2 लिखो, ब्रैकेट डाल के लिखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने 2 क्यों लिखा, बिकॉज हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। एक एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का है वो एक एटम का मास है, आपको उसको ट्वाइस करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव 2 एटम्स, प्लस atomic mass of oxygen. Clear? So this is your formula. Now put the values 2
Atomic mass of hydrogen is 1 u. I'm not writing units here. Last में हम unit लिख लेंगे. Plus atomic mass of oxygen is 16. So 2 plus 16 कितना हो गया बेटा? 18 u. This u is the unit. Gram नहीं लगाना. Again I'm telling you this is u, unified mass. 18 u is the mass of one molecule of water. बहुत सिंपल है, आप याद भी रख सकते हो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2. तो CO2 का मास होगा 1 एटम ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. Yes, what is atomic mass of carbon? जो मेन उसका आइसोटॉप 12 ही है नेचर में ज्यादा, तो आपको 12 भी यूज करना है. आइसोटॉपिक दूसरे आइसोटॉप्स के मासेस नहीं यूज करने जब तक मेंशन ना हो. नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ सी कार्बन 12 ओनली, तो हम उसका 12 वाला यूज करेंगे. 12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16. ऑक्सीजन का मास 16 है. वो टेबल जितनी आपको बुक में है उसके अलावा कुछ अभी मैं आज करवा दूंगी आपको. यू नीड टू नोट डाउन दोस मासेस. 12 plus 32 44 unit. So one molecule of carbon dioxide weighs 44 unit. जैसा आपने बताया जैसे कार्बन की बात कार्बन का मान Yes. तो वहां पे अगर हम ब्रैकेट में लिख के बात आगे लिख देते हैं तो कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं. 1 में लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई 1 से तो सेम वैल्यू रहेगी. इफ यू राइट हियर आल्सो 1 देन नो प्रॉब्लम. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. उससे आपको क्लियर रहेगा कि हर एक एटम का नंबर भी लिखना है. सी और विश हमें मल्टीप्लाई हुए होने चाहिए जितने एटम्स ज्यादा हैं अगर एक से. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी सॉल्व करो. नेक्स्ट इज anyone who can tell which formula is this, which compound is this? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज, इसमें एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस, अब देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप ये HCO3 सबका पहले वो फॉर्मूला बनाओ और ओवरऑल सबको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अदरवाइज राइट नाउ आई एम राइटिंग हियर इन द फॉर्म कि मैं सबको अलग अलग ही ट्वाइस कर रही हूँ. तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, ये ट्वाइस के बाहर वाला नंबर इन सबको मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, क्लोज, प्लस 2 multiplied by atomic mass of carbon प्लस, हाँ जी बेटा, थर्ड एलिमेंट जो फोर्थ एलिमेंट जो हमारे पास बचा है वो है ऑक्सीजन. व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हियर? 6. गुड. ये कई बार बच्चे 5 कर देते हैं. बेटा ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको सम एटम्स के नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 2 6. तो 6 times the atomic mass of oxygen. Now put the values. Okay, values. कैल्शियम एटॉमिक मास आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट आप बुक में उस टेबल में ऐड कर सकते हो. इट इज 40 plus 2 multiplied by atomic mass of hydrogen 1, 2 multiplied by atomic mass of carbon 12, 6 multiplied by atomic mass of oxygen 16. 40 plus 2 plus 24 plus 96. Total हुआ 6 4 10 12 160.
एक उसका था ना 162U is the mass, molecular mass of one molecule of calcium bicarbonate. Okay, 60 है 162 है 30 कैसे आ गया? 9 and 2 11, 11 and 4 15 तो यही हो गए, एक वहां से कैरी ओवर किया ना. In your book, I think masses, if you are not given up, note कर लो. पोटेशियम 39U, ये U है बेटा 4 मत लिख लेना इसमें. एक अभी मैंने आपको अभी बताया कैल्शियम का गिवन है बुक में. Yes, 40 given है. When one phosphorus is not given, 31U. Sulfur is given, I think 32 है ना. Yes. और एक तो और कॉपर का नहीं है given, 63.5U. एक आयरन का भी नोट कर लो. आयरन is 56U. I think others are sufficient to you. These extra masses you can note down. Potassium 59. आयरन Fe, आयरन मास सेम ही है, आयन में फर्क है. मास डजंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन. तो अगर वो Fe2 पॉजिटिव है या Fe3 पॉजिटिव हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं. मास विल रिमेन सेम, कॉपर चाहे +1 स्टेट में या 2 में. सेम फॉर आयरन आल्सो. हमने कल कंपाउंड में भी कॉपर आयरन के अलग अलग नहीं देखे ना, वो एग्जांपल से भी कर देंगे. हाँ जी, क्लियर हो गया. few masses you need to note down these. Sodium is, aluminium is also not given. Aluminium is 27U. Sodium is 23, aluminium 27. A few masses which are important because of paper examples इनके दे सकते हैं. So next we will start copper sulfate. First of all, you need to understand what is this compound. Normally, you have done up to your 8th standard. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4. बट जो कॉपर सल्फेट आप देखते हो लैब में ब्लू कलर का क्रिस्टल, वो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, उसके क्रिस्टल्स के साथ ये 5 मॉलिक्यूल वाटर के हमेशा प्रेजेंट होते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट. हाइड्रेटेड का मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर से. और ये वाटर मॉलिक्यूल इसके वेट, अब जब ऑब्वियसली उसके साथ इंक्लूड हो गए हैं तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा. जो नॉर्मल कॉपर सल्फेट होता है जिसमें ये 5H2 एब्सेंट होते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है. जो आप ब्लू कॉपर सल्फेट देख रहे हो दैट इज CuSO4.5H2O. डॉट डालने का मतलब है कि एग्जैक्ट मॉलिक्यूल तो CuSO4 ही है, बट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब आप उसके क्रिस्टल्स बनाते हो तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे ये इतने वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ ट्रैप हो जाते हैं. And that will change its molecular mass. तो अगर इसका आपको molecular mass निकालना है तो आपको water molecule का mass add करना पड़ेगा. Mass of one atom of copper plus mass of atomic mass of sulfur plus 4 multiplied by atomic mass of oxygen plus, look at this now. Now you have 5 water molecule. तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, आप 5 लिखो और molecular mass of water लिख दो. ठीक है, either you can write in this way. अगर आपको molecular mass water का 18 याद है, टिप्स पे है, नहीं है टिप्स पे तो इसको भी अलग अलग तोड़ दो, बाहर 5 लिख दो. 5 लिख के ब्रैकेट के अंदर लिख दो atomic mass of 2 hydrogen atoms plus 1 ऑक्सीजन. तो टोटल आप सीधा, बहुत सिंपल है, उसमें गलतियां ज्यादा होंगी, यहाँ गलती के चांस कम है. वाटर का याद रख लो 18U होता है, सीधा 18 को जितने भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लिखे हैं इट इज रिटन एज 10. एंड वन मिस्टेक मोर स्टूडेंट्स डू जनरली व्हेन वी गिव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, ये जो डॉट है वो फॉर्मूला में ही है. इस डॉट से आप लोग क्या करते हो, यहाँ बच्चे मल्टीप्लाई डाल देते हैं. इसका मतलब आपको मास में मल्टीप्लाई नहीं करना, मास तो ऐड ही होगा ना जितनी चीज ऐड हुई है. तो नो नीड टू यूज मल्टीप्लिकेशन while adding the mass of these two parts. पार्ट समझ लो ये एक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो कॉपर का मास है 63.5 प्लस सल्फर 32, 4 multiplied by 16, 5
63.5 32 ये हो गया 64 18 5 का 90 0.5 32549 9 6 15 and 3 18 and 6 24. So molecular mass of copper sulfate is 249.5 U. Note it down. Mass of one molecule of sulfuric acid. ये कॉमन नेम्स है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपको हाइड्रोजन सल्फेट नहीं लिखा हुआ मिलेगा इफ इट इज मेंशन सल्फ्यूरिक एसिड तो अपने आप समझ लो वो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट इज नॉट the name given to this compound popularly known as sulfuric acid because of its immense uses so you can say sulfuric acid पे पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना वो इस पे रहती है कुछ तो मेटल्स हैं जो ऐसे इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है एक कंट्री की दैट डिपेंड्स ऑन द यूजेस ऑफ कितना वो यूज कर रही है कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड को ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड एज एन एसिड इन इंडस्ट्रीज और जो तेजाब नॉर्मली यूज होता है डेली लाइफ में किसी भी पर्पस के लिए वो भी सल्फ्यूरिक एसिड हाईली मतलब करोड करता है इजीली है तो कोरोसिव है बहुत ज्यादा तो इसको वैसे यूज नहीं करना चाहिए सोसाइटी में आज तक तो मिलता भी नहीं है वो स्पेशल अगर आपको वो परमिशन देन ओनली इट इज सोल्ड इन मार्केट ओके सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालो बेटा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया 2 multiplied by atomic mass of hydrogen plus 1 atom of sulfur so atomic mass of S plus 4 atoms of oxygen तो ऑक्सीजन के मास को 4 से तो इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जब आप मासेस जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने आएंगे तभी तो आप मासेस निकाल पाओगे ना so this will be 2 multiplied by 1 plus 32 plus 16 so 32 64 98 तो ये मॉलिक्यूलर मासेस इतने ज्यादा मेमोराइज करने डिफिकल्ट होते हैं तो इससे बेटर यू कैन फाइंड आउट दीस मासेस ठीक है इन दिस वे एनी डाउट few more examples we can also discuss like जिसमें brackets वगैरह हम यूज करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है जैसे अभी एक एग्जांपल लिया हमने Al2SO4 whole thrice aluminium sulfate the formula is Al2SO4 thrice अब इसमें देखो ये केटायन तो ट्वाइस आया एल्यूमिनियम एनायन 3 टाइम्स आया तो मासेस जब हम इसके निकालेंगे 2 multiplied by atomic mass of aluminium plus अब ये 3 से पूरे सल्फेट टैंक को मल्टीप्लाई पहले ही कर लो 3 टाइम्स द मास ऑफ सल्फर plus Anji Khushi how many oxygen atoms are there 4 अंदर है ब्रैकेट के बाहर कितने 12 बेटा आप इसको अलग अलग लिख लो ऐसे अगर हमने 3 टाइम्स लिखा है ना तो ये 3 टाइम्स SO4 हो गए अब आप टोटल निकालो तो 12 हो गए ना तो 3 सल्फर मैंने लिखा 12 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन So now put the values 2 multiplied by atomic mass of aluminium is 27 3 32 plus 12 16
54 96 ये हो गया 12 6 192 ना ऐड कर लो इनपुट 6 and 2 8 and 4 352 unified mass is the molecular mass of one molecule of aluminium sulfate. जस्ट आपको फॉर्मूला मिलेगा बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको बस एटॉमिक मासेस नहीं हम देते एग्जाम में, बिकॉज इफ वी गिव एटॉमिक मासेस देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू डू इन हायर क्लासेस. तो अभी से जितने जितने आपको बुक में है और जो मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं उतने आप याद करो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं. ठीक है. उसने बोला मैंने चेक नहीं किया. 342 make the correction बेटा. One more example we can take. सोडियम एसीटेट, इसका भी सेम वैसे ही करना आपने. मॉलिक्यूलर मास इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, ये तो दिख ही रहे यहाँ पे आपको 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस अब यहाँ पर कार्बन बेटा देखो एक यहाँ है एक यहाँ पे और है, तो अलग अलग करने की बजाय मैं यहीं पे ट्वाइस करना है. ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, उसको लिखने का स्टाइल वो है, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है. आप जितने कार्बन है कलेक्टिवली यू कैन राइट द मासेस 2 times द मास ऑफ कार्बन 3 times द मास ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन आपके पास 2 है यहाँ पे, तो 2 times द मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ sodium. Now put the values. 2 times carbon, carbon का mass है 12. 3 times hydrogen, hydrogen has mass 1, the lightest element. 2 times the mass of oxygen, which is 16, and 1 time the mass of sodium, which is 23. 24 plus 3 plus 32 plus 23. 4, 3, 7, 9 and 12. 82 आ गया. Yes. 82 is the unified mass of sodium acetate. अब बेटा इसी में मैंने आपको सबको यूनिट सॉरी मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज किया है. आपकी बुक में एक्चुअल में 2 टर्म्स यूज है. डिफरेंस क्या है, आपको मिलेगा फॉर्मूला यूनिट मास टर्म. Actually, formula unit mass term is used. Calculation is done in the same way. Difference क्या है, आप केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं. एक है इस टाइप के कंपाउंड्स, दूसरे हैं इस टाइप के कंपाउंड्स. डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं. तो जब भी कंपाउंड्स नॉन मेटल से मिलके बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. No need to write this, just समझ लो. The compounds which are made up of non-metals essentially are called covalent compounds. The compounds which are made up of metal and non-metal, ठीक है, metal का cation बनेगा, non-metal का anion बनेगा. Then these compounds are known as ionic compound. ठीक है, जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके आयंस नहीं बनते, मतलब ये आयंस के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं. तो इन कंपाउंड की जो एक एग्जिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, आयंस की फॉर्म में नहीं होती. तो इसलिए इनका जो इंडिविजुअल पार्टिकल है व्हिच इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास.
अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है इसमें बेटा इनकी क्रिस्टल्स में दो तरह के आयन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगी इट विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटायन एंड एनायन। और इन केटायन और एनायन के नंबर जो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर 1 1 है। अब जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट अगर हम देखें क्रिस्टल, तो एल्यूमिनियम हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट हैज 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 एल्यूमिनियम आयन चाहिए, 3 आपको सल्फेट आयन चाहिए। तब आप कहोगे कि ये चार्ज जो हुआ +6 और ये -6 न्यूट्रलाइज हुआ। तो इस पूरे 5 आयंस की एक जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं Al2SO4 थ्राइस, दिस इज कॉल्ड वन फॉर्मूला यूनिट। वहां हम इसको एक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसके एक इंडिविजुअल पार्टिकल को, इसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है आयनिक कंपाउंड का, दैट इज नोन एज वन फॉर्मूला यूनिट। क्लियर? अब वन फॉर्मूला यूनिट कहो, मॉलिक्यूल कहो, बात वही है, सिर्फ टर्म्स अलग अलग यूज है क्योंकि वो आयन से बन रहे हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आयन फॉर्मेशन नहीं है। तो कैलकुलेशन मैंने आपको सबको मॉलिक्यूलर मासेस के अंडर ही करवा दिया, बट उसमें से जो भी ऐसे कंपाउंड्स थे, जैसे हमने एल्यूमिनियम सल्फेट किया, अभी CH3CONA किया, उससे पहले मैंने वो कॉपर सल्फेट .NH2 था, उनके लिए टर्म फॉर्मूला यूनिट मास यूज होती। ठीक है, बट जनरली हम लोग हायर क्लासेस में तो फिर फॉर्मूला यूनिट मास यूज ही नहीं करते, हम सबको मॉलिक्यूलर मास ही कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितने की फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं? आप आयनिक कंपाउंड के लिए आपको अगर हम एग्जाम में भी डालेंगे, वी जनरली गिव फॉर्मूला यूनिट मास, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वो क्या है। सेम वे आपको बस वही काम करना है। नाम फिर आप जब कैलकुलेशन कर लो, m मास की जगह फॉर्मूला यूनिट मास लिख लो, डोंट वरी फॉर दैट। एंड गिव मी अ जो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं